यार आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं ईरान को अब शांति स्थापित करनी चाहिए। अगर शांति नहीं हुई तो हम फिर अटैक करेंगे। खुली चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को। भविष्य में हमले कहीं अधिक बड़े होंगे और आसान होंगे। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने जारी किया बयान। ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं शक्ति के माध्यम से शांति, पहले शक्ति आती है फिर शांति आती है। अमेरिका ने बहुत ताकतों के साथ काम किया और इस बार भी अमेरिका ने एक ताकत के साथ काम किया। तो खुली तौर पर चेतावनी जरूर जारी की है अमेरिका ने और ईरान से कहा है कि अगर नहीं मानता है ईरान तो फिर से हमले, अटैक अमेरिका करेगा। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed.
it has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सिर्फ उनका रुख करेंगे। ललित, ईरान पर हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू के बयान के क्या मायने निकाले जाएं? शांति स्थापना की ओर एक बार उन्होंने अपील की है और कहा है कि अगर ईरान नहीं मानता है तो फिर से अटैक करेंगे, यानी चेतावनी भी दी और शांति का संदेश भी दिया है। दोनों के मायने संतुलन तौर पर देखें तो क्या? देखिए सौरभ, जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अमेरिका लगातार बयानबाजी कर रहा था, आखिरकार वो आ गया इस लड़ाई में और उसने कल रात अपने B-2 बॉम्बर से जो है एक तरीके से 3 जो उसके ठिकाने हैं इजराइल के, जहां पर वो ईरान के जहां पर वो परमाणु तकनीक को विकसित कर रहा है, उन सभी जो तकनीक हैं उन सेंटर्स पर उसने हमला किया। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने उस हमले के बाद, पहले तो उन्होंने कल रात ही जो है एक ट्वीट कर दिया था, उन्होंने बताया था, लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से बातें कही हैं वो अपने आप में बेहद एक तरह से जो उनका मिशन है ग्रेट अमेरिका वंस अगेन, इस मिशन की ओर वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज रात मैं दुनिया को बता सकता हूं कि ये हमले जो है एक शानदार सैन्य सफलता है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का हमला अमेरिका ने किया है, ऐसा हमला और ऐसा ऑपरेशन दुनिया की कोई दूसरी मिलिट्री नहीं चला सकती है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत कोशिश की कि ऐसा कदम ना उठाना पड़े, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। और उन्होंने फिर से ईरान को कहा है कि उसको शांति के रास्ते पर लौटना चाहिए, कि वो रास्ते पर लौट आए और उसे ये जंग खत्म करनी होगी। इन्होंने एक बार फिर से ये भी कहा, और अगर ईरान ने अभी जो है इस तरीके का कदम नहीं उठाया तो उसे आने वाले समय में भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं सौरभ कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का मतलब ये है कि एक तरीके से उन्होंने इस लड़ाई में एंट्री लेते हुए इसे खत्म करने की बात कही है। अगर अभी भी, और ईरान क्योंकि पहले ही कहा था, खामनेई सरकार पहले ही साफ कर चुकी थी कि अगर अमेरिका इस पूरी लड़ाई में आया तो इस लड़ाई के में अमेरिका को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अगर आप सौरभ ईरान के इतिहास पर नजर डालेंगे तो अमेरिका और ईरान के संबंध जो हैं पिछले कई दशकों से खराब हैं, और लगातार जो है जिस तरीके की कार्रवाई वहां पर हुई है, जिस तरीके की घटनाएं वहां पर हुई हैं, अमेरिका के कई नागरिकों को बंधक बना लिया था ईरान के कई आतंकवादियों ने, कई सैन्य कर्मियों ने। तो कुल मिलाकर के अगर उन सभी घटनाक्रमों को देखा जाए तो आज जिस तरीके से कल रात कार्रवाई हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब एक तरीके से ईरान का इस पर पूरे पर क्या रिएक्शन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा है कि जो काम अमेरिका ने किया है वो काम दुनिया का कोई और देश नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक साफ बात कही है कि शक्ति के साथ ही शांति आ सकती है। देखिए उनका जो ट्वीट है उसे मैं पढ़ के आपको बताता हूँ कि राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं कि शक्ति के माध्यम से शांति, यानी कि अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप शांति की बात नहीं कर सकते। पहले शक्ति आती है फिर शांति आती है। और आज रात जो है डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ ये काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल ने जिस तरीके से कहा है कि शांति की बात वही कर सकता है जो ताकतवर है, यानी अमेरिका ताकतवर है इसलिए वो शांति की बात कर सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए
तो इस पूरी लड़ाई में अमेरिका की एंट्री हो गई है और अब 3 लोगों का रिएक्शन आना बाकी है अगर देखा जाए। उसमें ईरान है, उसमें रूस है, उसमें चीन है। अब इन तीनों देशों का क्या रिएक्शन होता है, ये सबसे अहम बात होगी। जी ललित, एक सवाल है, वो सवाल ये कि खामनेई के तेवर अगर बीते दिनों देखे जाएं तो क्या उनके तेवरों को देखकर लगता है कि वो शांत बैठने वाले हैं? क्या मिडिल ईस्ट में शांति की स्थापना होगी? क्या कई सवाल हैं कि क्या ट्रंप की जो अपील है उसका असर खामनेई पर देखने को मिलेगा? क्या ईरान थम जाएगा? क्या ईरान अमेरिका से डर जाएगा? क्योंकि वो चेतावनी भी दे चुके कि अमेरिका को बीच में नहीं बोलना चाहिए, अब इजराइल अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। अब इस हमले के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा सकती है ईरान की तरफ से? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ईरान की तरफ से आपने कहा कि क्या प्रतिक्रिया आ सकती है। देखिए, ईरान की तरफ से जो प्रतिक्रिया एक्सपेक्ट की जा रही है, ईरान इन हमलों की निंदा कर सकता है और साथ ही अब वो क्या भविष्य में लड़ाई लड़ने की बात कहता है अमेरिका से, या फिर वो किस तरीके का एक्शन लेता है, इसको लेकर तो फैसला अभी थोड़ी देर बाद होगा, क्योंकि सरकार के टॉप लीडरशिप के लोग जो हैं वहां पर इस वक्त मंथन कर रहे होंगे। और जो कोडो, जो एक उनकी जगह है जहां पर परमाणु कार्यक्रम विकसित किया जा रहा था, उस पर हमले को लेकर भी जो है ईरान की ओर से कंफर्म किया गया है कि हाँ, वहां पर काफी नुकसान हुआ है। अमेरिका की ओर से जो B-2 बॉम्बर्स के ने बम वहां पर बरसाए हैं, उसके बाद नुकसान तो काफी हुआ है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अपने आप में ये जो तीनों देश हैं और ईरान है, सबसे महत्वपूर्ण ईरान है क्योंकि ईरान पर ही हमला हुआ है। क्या ईरान अमेरिका के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेगा? क्या ईरान इस लड़ाई को यही खत्म कर देगा या भविष्य में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाएगा? तो अब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो स्थिति है वो सब कुछ निर्णय जो है अब ईरान को लेना है। और ईरान क्या निर्णय लेगा सौरभ, ये तो अब से मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। और ईरान जो भी निर्णय लेगा वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं रूस और एक तरह से रूस और यूक्रेन में लड़ाई लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान और इजराइल की भी लड़ाई शुरू हो गई है और अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है इस पूरे इसमें। तो आप ये समझिए कि एक तरफ अगर दक्षिण एशिया की बात करें, जो रूस और यूक्रेन की बात करें, वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका और इजराइल और गाजा पट्टी की लड़ाई जो है अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुई है। तो कुल मिलाकर के जो है कि दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ये कह तो रहे हैं कि वो लगातार शांति कराना चाहते हैं और शांति के लिए वो काम करना चाहते हैं, लेकिन शांति आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और खुद अब तो अमेरिका ने एक तरीके से जिस तरीके से कार्रवाई कर दी है, उस कार्रवाई के बाद लगता ये है कि अब शांति आने की तो दूर छोड़िए, अब तो एक तरीके से दुनिया कहीं ऐसा ना हो कि 2 और खेमों में बढ़ जाए। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके की स्थितियां नजर आ रही हैं, उसमें अभी तक का अपडेट फिलहाल ये है कि अमेरिका की तरफ से रिएक्शन आ चुका है और ईरान की तरफ से रिएक्शन आना बाकी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बने रहे आप हमारे साथ।